Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444 and 2342-1050 and 2331-0464. And don't forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके सवालों के जवाब देंगे। व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। मोबाइल से फ़ोन करने वाले और दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ अमन अग्रवाल। नमस्कार अमन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले हेडलाइंस के साथ निशित कुमार। The headlines: Domestic indices end in red in range-bound trade. Sensex sheds 271 points while Nifty settles below 25,000. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says India aims to become the food basket of the world. And Supreme Court dismisses petitions of Vodafone Idea and Bharti Airtel seeking waiver of AGR dues. देश के शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव से गुजरकर गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 271 अंक नीचे आया, निफ्टी 25,000 के नीचे बंद हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत का लक्ष्य है दुनिया का फूड बास्केट बनना। और सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के AGR बकाये को माफ करने की अर्जी खारिज की। आइए पहले नज़र डालते हैं देश के शेयर बाजारों पर। आज प्रमुख सूचकांकों में थोड़ी गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 271 अंक यानी 0.33% गिरकर 82,059 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 74 अंक यानी 0.3% गिरकर 24,945 पर आ गया। वैश्विक संकेतों के साथ साथ IT क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव बना रहा। लेकिन BSE के मिड कैप इंडेक्स में 0.27% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.75% की तेजी दर्ज की गई। निश्चित आपके पास डिटेल्स हैं कुछ? Yes, the benchmark domestic indices ended in the red today, reacting to weak global cues and a sell-off in IT shares after ratings agency Moody's downgraded the US government's sovereign credit rating. In a range-bound day of trade, the 30-share index of the Bombay Stock Exchange Sensex slipped 271 points or 0.33% to close at 82,059. The National Stock Exchange Nifty 50 fell 74 points or 0.30% to settle at 24,945. However, the broader market indices ended with gains. The BSE mid-cap index added 0.27% and the small-cap index rose 0.75%. In the Sensex index, 20 out of 30 companies ended with losses. Among the top laggards, Eternal fell 3.15%, Infosys lost 1.92%, TCS fell 1.23% and Tech Mahindra fell 1.19%. On the downside, Power Grid rose 1.27%, Bajaj Finance gained 0.95% and NTPC rose 0.58%. In the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, 13 out of 21 sectors registered gains. Realty rose 2.22%, healthcare gained 0.58%, while utilities rose 0.42%. Conversely, focused IT lost 1.33%, IT slipped 1.23%, and tech fell 1.07%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,531 companies advanced, shares of 1,565 companies declined, while shares of 177 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 67 companies hit their 52-week high, while 19 hit their 52-week low. And now we are joined in by our first caller from Karnataka, Kumar Nayak. Kumar, welcome to the show.
Good evening, entire market. Good evening, Kumar. Shoot your question. Yes. Sir, I wanted to know that since we are a basic learner, I want information, brief information regarding small cap, mid cap, and large cap, and what is the difference between these caps. So, if you could give the information briefly, so it would help the basic learner like us. Okay. Thank you. You see, the word cap refers to capitalization, and the capitalization is the market capitalization a company has. What is the total market value of that company, of the numbers of shares which are floating in the market. So the whole Sensex gets divided into different caps, which are low cap, which have low market capitalization, mid-size market capitalization, and a high size. So it all depends on the amount of value which you're investing in. So accordingly, one makes an investment. Some people typically invest in large cap companies, some invest in mid cap, and some in small, depending on the kind of funds available with them to make an investment. Similarly, this also reflects many a times the rating, but it is not directly related to anything with the ratings like AAA rating or AA or any other ratings which are given to these companies. They can interchange from these caps also. जी, अगले कॉलर है चेन्नई से राजा. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. Good evening, all of you, sir. गुड इवनिंग. Good evening. Sir, I have a very basic question. Yes, In sir. stocks, when we are achieving, say, 35-40% or whatever on the profit side, how to book the profit, sir? I have to sell the entire stock or partial? I have to sell. I have to book the amount of profit only. Because I am not very clear. Yes, sir. So if you see that steep rise, and if you want to book the complete profit, like you're saying about 34% or 40% or whatever, if you want to encash that, then you have to sell the full stock holding which you have for that particular stock. Only then you are able to book that profit. But if you are not clear whether this is the only profit and you're expecting the share to rise, but suppose you need the money for now and you want to encash on some of the profit, so part of the shares could be sold and part could be held for the future. It all depends on your understanding of the market and the market timing you want to do. Next caller is Keshav from Delhi. Keshav. नमस्कार जी. नमस्कार. सवाल पूछें केशव अपना. सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर प्राइवेट बैंक में हम कुछ इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं एफडी के बारे में, तो हमें एक 25 साल की एक स्कीम बता देती है. 2 लाख रुपए हर साल दीजिए, रिटर्न में आपको 84,000 85,000 मिलेगा हर साल. 12 साल तक आपको जमा करने हैं, पर 84 85,000 25 साल तक आपको रिटर्न आते रहेंगे. फिर टोटल अमाउंट आपको 25 साल बाद मैच्योरिटी के बाद मिलेगा. ये एजेड लोगों के लिए नहीं बताते, यंग लोगों के लिए बताते हैं. और दूसरा, आज की तारीख में सोना को जो डिसाइड करता है रेट, वो कौन करता है? ये मार्केट में होता है कि कोई दूसरे देश से होता है? धन्यवाद. बहुत अच्छी बात कही. दूसरा क्वेश्चन मैं पहले करूंगा. जो सोने की बात है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे डिसाइड होता है. हमारा सोने का एक्सचेंज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, और फिर वो रुपए पे कन्वर्ट होता है. कुछ उसका जो फैक्टर है, क्योंकि कमोडिटी एक्सचेंजेस इंडिया में भी हैं, उस पर होता है, पर जो रियल एक्सचेंज जो डिसाइड होता है प्राइसिंग, वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज से डिसाइड होती है. दूसरी चीज़ जो आपने बात करी फिक्स डिपॉजिट्स की, देखिए फिक्स डिपॉजिट 25 साल के लिए नहीं होती हैं. फिक्स डिपॉजिट एक अलग प्रोडक्ट है, और जो आप प्रोडक्ट कह रहे हैं जिसमें आप SIP डालते रहते हैं और वो ऐसा करके बिल्टअप होता है, वो अलग प्रोडक्ट है. देखिए मेरे विचार में, चाहे यंग आदमी हो या बूढ़ा आदमी हो, इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि आप अपनी लिक्विडिटी को प्योरली लॉक कर रहे हैं. अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, कहीं से आई है आपके पास या आने की उम्मीद है, हर महीने आ रही है, तो बात अलग है. अदरवाइज़ एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो है 2 से 3 साल, मैक्सिमम 5 साल के लिए आपको अपना पैसा लॉक इन करना चाहिए, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो या कुछ और हो. अगर आपके पास पैसा है तो RBI के SBI बॉन्ड्स आते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, इस टाइप की स्कीम्स हैं कुछ जो भारत सरकार की हैं. उसमें 6 या 7 साल का लॉक इन पीरियड है, पर वो सिक्योर है, 100% सिक्योर है. उसमें कोई 5 लाख की लिमिटेशन का चक्कर नहीं है, 100% सिक्योरिटी है. PPF है, उसमें पैसा जमा कराएं, उसमें 100% सिक्योरिटी है, बिकॉज एक गवर्नमेंट के पास पैसा रहता है और उसमें रेट ऑफ रिटर्न भी बड़ा अच्छा मिलता है. इनफैक्ट अमन, एक बात और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे. जैसा कि आपने अभी जस्ट मेंशन किया कि फिक्स डिपॉजिट हो या गवर्नमेंट बैक कोई बॉन्ड हो, सिक्योरिटी हो, उसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न जो गारंटीड है वो मिलेगा. लेकिन ये बात कर रहे थे हमारे कॉलर की, कुछ लोग ऐसे वहाँ पे होते हैं जो ये बोलते हैं कि आप इतने साल तक इतने रुपए जमा करो, इतना फिक्स्ड आपको रिटर्न मिलेगा. आमतौर पर अमूमन ऐसा देखा गया है अमन कि वहाँ पे जाकर के जैसे यूलिप जैसे प्रोडक्ट होते हैं या फिर इंश्योरेंस या कुछ इस टाइप के अलग प्रोडक्ट होते हैं,
उनमें उन झांसों में ले लेते हैं, मिस सेलिंग, मिस रिप्रेजेंट करके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए काफ़ी हद तक जो है इंश्योरेंस कंपनीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, बिकॉज वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने की जगह उन्होंने उसको इन्वेस्टमेंट व्हीकल बना दिया, जबकि वो है नहीं चीज़ वो। पर लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज इतना निर्धारित समय तक नहीं लोगों को पता होता, तो इतने समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना मेरे विचार में राइट नहीं है। छोटे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करके ही उसको अपने पैसे को सेफ रखना चाहिए। ये एक पहलू है मन। दूसरा पहलू ये है कि इसमें कोई फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न नहीं, बिकॉज मार्केट रिस्क से डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरा, कल को अगर वो 20 साल के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो एग्जिस्ट ना करे तो फिर आपके पैसे का क्या होगा। और एक्चुअली एफडी के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फिक्स की गारंटी दे सके। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बट फिक्स डिपॉजिट में भी बैंक की जो 5 लाख की लायबिलिटी लिमिटेशन है। सिर्फ आरबीआई बॉन्ड्स और पीपीएफ ही एक ऐसा अमाउंट है, या एनएसएस ऐसा अमाउंट है, क्योंकि वो पैसा भारत सरकार के पास रहता है, उसमें 100% आपको रिटर्न मिलता है। वो आपको कहीं पे लूज नहीं होगा, कंपनी जाए या ना जाए, क्योंकि भारत सरकार तो रहेगी ही। जो भी बाजार से जुड़ा होगा उसमें रिस्क हमेशा रहेगा। बिल्कुल जी। जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ सर, जैसे कुछ दिन पहले हमारे इधर जयपुर में एक सेमिनार हुआ था, तो मैं वहाँ पे गया था। तो एक दो विशेषज्ञ लोग थे, कुछ लड़काई टाइप का था, कोर्स किया था। तो उन्होंने हमको बताया कि ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं रखना चाहिए। वो बताया हम तो 7, 8, 10 स्क्रिप्ट ही रखे हैं, इससे ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं रखना चाहिए। तो एक आम आदमी के लिए एकदम मतलब मध्यम वर्ग जिसको बोलेंगे, तो वास्तव में क्या सही था। और दूसरा कि उन्होंने बोला कि अभी जैसा जा रहा है और आगे का जैसा भविष्य बता रहा है, इंडेक्स फंड एक रख लो, बाकी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, लास्ट में वही जाके आसपास। ऐसा क्या लग रहा है कि आपको सही ऊपर? नहीं, देखिए ये इंडेक्स फंड जो है हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप रख लें, अगर आपको ज़्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं है। वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, बिकॉज एक नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स के बेसिस पे होता है वो। दूसरी बात यह है कि कितनी स्क्रिप्ट्स रखेंगे, कि आप आधी रोटी खाएं या 1 रोटी खाएं या 5 रोटी खाएं, ये बड़ा मुश्किल है डिपेंड करना किसके ऊपर। अब किसी के लिए 10 स्क्रिप्ट भी बहुत छोटा होता है और किसी के लिए 5 स्क्रिप्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा उन स्क्रिप्ट्स में लगा रखा है और कितने वैल्यू है उन स्क्रिप्ट्स की, उस वैल्यू में, और कितनी वॉलेटिलिटी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है उन स्क्रिप्ट्स में और आपने बहुत ज़्यादा निवेश कर रखा है, तो हो सकता है आपने 2 स्क्रिप्ट में भी लगा रखा हो, तो आपका पैसा डूबने के चांसेस या बहुत तेज़ी रिटर्न मिलने के भी चांसेस ज़्यादा हों। और आपने 100 स्क्रिप्ट्स खरीद रखी हों अलग अलग कंपनीज़ की, और आपने पैसा निवेश कर रखा हो सिर्फ 1000 रुपये उसके अंदर, तो उसमें कोई ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है। तो इसलिए ये नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स का हिसाब किताब नहीं है, ये आपके कितना वैल्यू कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कॉलर इज मोहित फ्रॉम फरीदाबाद। मोहित, वेलकम। मोहित, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? मोहित, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ओके, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं कि रुपया आज कहाँ रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 12 पैसे बढ़कर 85 रुपये 40 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। डॉलर इंडेक्स 100.18 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। एंड मूविंग ऑन टू एशियाई बाजार भी बता दूं मैं इस बीच में। जी, एक नज़र एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज ज़्यादातर मंदी का रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9%, जापान का निक्केई 0.68%, सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.56% और हांगकांग का हैंग सेंग 0.05% नीचे बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी गिरावट देखी गई। फ्रांस के कैक में 0.6% और लंदन के फुटसी में लगभग 0.5% की गिरावट थी। जर्मनी का डैक्स 0.1% नीचे कारोबार कर रहा था। अगले कॉलर हैं मुंबई से हसमुख। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Yeah, good evening, Market Mantra. Good evening. See, my question is that after the US downgrade yesterday by Moody's, and we know what are the problems in India Pak and tariff war. So, what is your suggestion for investor in short term, medium term, long term? No, I think first of all, both the tariff war as well as the India-Pak war is on hold. So there is no any perception on those going forward. Secondly, as I've said before also here,
The tariff war which is there is not that much for India because only 10% was applied, and that is also on a specified goods which are actually more like Veblen or goods which are inelastic demand. That means the demand will not finish or diminish off. जैसे cigarettes are there, the whatever taxes are levied, someone may consume little less for the time being, but he comes back to his normal consumption. So the products which they have been launching these tariffs on are not so much of a concern critically. But India-Pakistan war, as of now, on hold. If something happens tomorrow, as has been coming from the leadership, if it goes further, then there might be a negative impact on markets in India. That always happens when wars normally happen. But as of today, there is no sign of it, and I don't think we should perceive and make unnecessary conclusions thereupon for the market. The markets are moving well, and they are moving in tandem and growth. Next caller is Tinku Kumar from Bihar. टिंकू जी सवाल पूछें. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्कार सर. एक मेरा लड़का है 10 साल प्लस और लड़की है 3 प्लस है. तो मैं सर लड़का के लिए एजुकेशन और लड़की के लिए शादी के लिए कोई ऐसा पॉलिसी है उसमें कुछ जानना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में उसका अच्छा रहे. इसके लिए जानकारी चाहिए सर. देखिए, लड़की के लिए भारत सरकार की स्कीम है, उसके तहत आप जो है उसके खाता बना के उसमें पैसा जोड़ सकते हैं. उसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलता है, सेफ भी है वो. और जब वो लड़की बड़ी होगी, शादी लायक होगी, उसकी पढ़ाई ठीक ठाक हो, शादी करें तो उसके अंदर वो काम आ सकती है. जहाँ तक लड़के की एजुकेशन की बात है, उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा. उसमें कोई ऐसी स्कीम नहीं है. ज़रूर आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, अलग अलग बैंकों से, NBFCs भी देती हैं और भी कंपनियां देती हैं. तो उन लोन के थ्रू जमा करने की बात कर रहे हैं. हाँ, बट अब वो कह रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाना है मुझे, 10 साल वाले बच्चे को, तो उसके लिए अगर धीरे धीरे जमा करना हो तो जैसे सुझा सकते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट एक ग्रामीण उसके लिए कोई करेक्ट. बट रेकरिंग डिपॉजिट इज ऑलवेज वन स्कीम वेयर वन कैन गो अबाउट डिपॉजिटिंग एंड बिल्डिंग अप द स्ट्रक्चर. बट एट द लेवल which he is, it doesn't seem that big an amount which he'll be able to save. It is better he invests directly now. और अमन इनको बता दें कि जो बेटी के लिए जो स्कीम है वो सुकन्या समृद्धि योजना है. इसमें आप टिंकू जी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं. बहुत अच्छी स्कीम है ये भारत सरकार की. अगले कॉलर हैं कोलकाता से LP कोठारी. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. नमस्कार मार्केट मंत्रा. नमस्कार. सर मेरा सवाल जो है ITR ई फाइलिंग से संबंधित है. एक्चुअली मार्च 31 को ईयर एंडिंग हो गया. अप्रैल में 2-5 दिन बाद ये ऑनलाइन शुरू हो जाता है रिटर्न फाइलिंग. अब ये अप्रैल पूरा चला गया, मई भी जा रहा है, 2 महीने खत्म हो गए, अभी तक ITR ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है. मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास 500 रिटर्न है. अब ये कब मैं जुलाई तक भरूंगा? अगर आपके पास कोई जानकारी है या कोई सोर्स है तो मेरे को बताइए. मैं रोज देखता हूँ चालू हुआ कि नहीं हुआ. आपने बिल्कुल ठीक कहा. जैसे भारत सरकार का जो पोर्टल है वो अपडेट करते हैं, हर बार नया सिस्टम करते हैं, बिकॉज हर साल नए रूल्स लागू किए जाते हैं. तो कभी कभी थोड़ी देरी होती है, पर आप चेक कर लीजिए. और जुलाई तक जैसे समय रहता है, और कभी कभी अगर देरी ज़्यादा हो रही होती है, लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, तो भारत सरकार उस टाइम को एक्सटेंड भी करती है. तो इसलिए घबराने की बात नहीं है. और आजकल तो रिटर्न फाइल करने में बड़ा कम समय लगता है, बिकॉज ज़्यादातर TIS से रिपोर्ट से डेटा और AS26 से डेटा सारा रिपोर्ट्स में आ जाता है डेटा के अंदर. तो इसलिए आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं. मेरे विचार में कुछ समय में खुल जाएगा. ये एक और कॉलर अभी लाइन पर है वेस्ट बंगाल से के सिंघल. लेकिन उससे पहले एक खबर पर नज़र डाल लेते हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के अन्न के भंडार भरे हुए हैं और हमारा सपना और संकल्प है एक दिन भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना. उन्होंने कहा कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा. यह अभियान इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा और 12 जून तक चलेगा. इस अभियान का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों और बीजों के बारे में जानकारी प्रदान करना है. नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि देश भर के 723 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा और इससे लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों का एक दल लगभग 65,000 गांवों में जाएगा और किसानों को वैज्ञानिक कृषि की व्यावहारिक जानकारी देगा. जिला स्तर पर प्रत्येक दल हर दिन 3 बैठकें करेगा. श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और देश की लगभग आधी आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है.
कृषि क्षेत्र देश की खाद्य सुरक्षा की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत जैसा महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत विकसित कृषि, विकसित खेती और समृद्ध किसान जैसी संकल्पनाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2023-24 में देश भर में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 1,557 लाख टन था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,664 लाख टन हो गया है। और चले हम इंतजार कर रहे हैं अपने कॉलर्स के पास। पश्चिम बंगाल से हैं के सिंघल हमारे साथ। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और बैंक में सीनियर सिटीजन स्कीम जो है गवर्नमेंट की, कि कुछ बैंकों में भी है। हाँ जी जनाब। तो कोई बैंक बोलता है आपकी लिमिट 30 लाख है फॉर जॉइंट अकाउंट, और कोई बोलता है 60 लाख, 50 लाख फॉर इंडिविजुअल पर पैन कार्ड। इसमें क्या आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? देखिए जी, जो सीनियर सिटीजन्स की जो एफडी फिक्स डिपॉजिट 5 साल वाली स्कीम है उसमें 15 लाख है, जॉइंट अकाउंट में वो 30 लाख है। 60 लाख का फिगर ये अभी मैंने पहली बार सुना है, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है वो 15 लाख है। जॉइंट अकाउंट होता है, अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन होते हैं तो जॉइंट अकाउंट उसको उसमें जो खुलता है उसमें आप 30 कर सकते हैं, पर वो आप सिंगल करें या ज्वाइंट करें, फ़ायदा उसमें ये होता है कि कल को कभी कुछ हो जाता है तो दूसरा जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है उसके पास उस पैसे का निर्भर रहता है और वो आराम से उसका हो जाता है। तो जॉइंट अकाउंट का ये फ़ायदा रहता है खोलने का। इसके अलावा जो है सीनियर सिटीजन को कुछ बेनिफिट दिए गए, जैसे इस कार्यकाल में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि उनका जो इनकम जो टैक्स जो काटते हैं TDS बैंक काटते हैं वो 1 लाख रुपये तक का उसके ऊपर टैक्स नहीं कटेगा, जो पहले नहीं था, कम था बहुत पहले। और इसी तरीके से और सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन्स की जो लिमिटेशंस थी और जो बेनिफिट्स थे TDS रिटर्न फाइल करने के, आपको अगर TDS नहीं कटवाना है उसमें भी उन्होंने थोड़ी रिलीफ दी है। राइट, एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर PK बैनर्जी फ्रॉम गुरुग्राम। मिस्टर बैनर्जी। नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ सर, मैं 2 सवाल हैं। जैसे कि हमारे एक मित्र ने अपनी बिटिया के लिए डेली 12.5 रुपए अपने एक जगह इकट्ठे करते थे और महीने में जाके इसको जमा करते थे। अब इस स्कीम का नाम मुझे नहीं मालूम। उन्होंने बोला जब बच्ची हमारी सीनियर हो जाएगी, शादी लाभ हो जाएगी, तब उसकी वो अकाउंट में काम आएंगे। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर हम गोल्ड खरीदते हैं बिस्किट के तौर पे, तो उस पर क्या हमें टैक्स भी देना पड़ता है या कुछ इसमें कुछ नियम कानून है, इसके बारे में बताएंगे? देखिए जी, जहाँ तक पैसा जमा करने की बारी है वो आप जैसे वो जोड़ रहे हैं उसमें करें या PPF अकाउंट में बच्चे के करके करें, उसमें भी 15 साल का लॉक इन पीरियड है। एक समय के बाद आप उस पैसे को कुछ निकाल भी सकते हैं, तो उस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि लड़की के लिए सुकन्या की स्कीम है, ये स्कीम्स काफ़ी सारी हैं जिनको आप लेके कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी है सिस्टम्स होते हैं, मनी बैंक पॉलिसीज़ होती हैं, उनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपने गोल्ड की बात करी, देखिए गोल्ड के अंदर आप ऑलरेडी टैक्स देते हैं। अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो मार्केट में आपको जब लेते हैं तो उस समय आप टैक्स उसको देते हैं। अगर आप ऐसे बिना बिल के ऊपर खरीद रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज़ अगर आप बिल पे जैसे खरीदना चाहिए अपना पैन कार्ड देते हैं तो उसमें टैक्स लगता है और पता चलता है। इसमें लिमिटेशंस हैं कि कितना गोल्ड एक इंसान आदमी अपने घर में रख सकता है, कितना उसके पास होना चाहिए। अगर उससे कभी भी ज़्यादा पाया जाता है सरकार उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकती है कि आपने ये कहाँ से खरीदा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है और आपने वाइट मनी से, जैसे आपके सैलरी आती है या कहाँ से आती है वो खरीदा है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। पर अगर आपके पास ऐसी जगह से आ रहा है जैसे कैश इनकम है जिसका कोई प्रूफ नहीं है और उससे आप खरीद रहे हैं तो सरकार उसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकती है। इसमें महिलाओं के लिए अलग है, आदमियों के लिए अलग लिमिटेशन है। Right, and moving on to some other stories, the Supreme Court today dismissed petitions filed by telecom majors Vodafone Idea and Bharti Airtel that sought a waiver on paying interest penalty and interest on penalty components related to their adjusted gross revenue, that is AGR dues. A bench led by Justice J.B. Pardiwala termed the petitions misconceived. The ruling came after Vodafone Idea had sought a waiver of over 45,000 crore rupees in AGR-related liabilities. Bharti Airtel and its unit Bharti Hexacom too had filed a similar plea asking for a waiver of 34,745 crore rupees. And on to the next story. The United Kingdom and European Union have reached a deal on food, fishing access, defence and UK travellers' access to e-gates. The new deal announced
at a summit in London today also includes a new security and defence partnership. The UK government said this will pave the way for the UK defence industry to participate in the EU's proposed new €150 billion security action for Europe, that is Safe Defence Fund. और अगली खबर पे नजर डालें हम केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि डिजिटल सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का प्रमुख वाहक बन गया है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि जेम ने आरंभिक बाधाओं को दूर किया है, भ्रष्टाचार को समाप्त किया है और छोटे कस्बों में हाशिए पर मौजूद लोगों के सशक्तिकरण और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही इससे करदाताओं से प्राप्त धन की बड़े पैमाने पर बचत भी संभव हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के लेख को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि जेम पोर्टल हाशिए पर पड़े लोगों के लिए दरवाजे खोल रहा है और भारी बचत सुनिश्चित कर रहा है। श्री मोदी ने लिखा कि इससे पारदर्शी शासन के लिए सरकार के प्रयास को डिजिटल क्षेत्र में बढ़ावा मिला है। Yes, Aman, we'd like to have your views on this GEM portal, which has really kind of been a cog in the wheel of forwarding the India's economy. और ये काफी चर्चा में है आजकल। नहीं, मेरे विचार में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था और अब इसको काफ़ी हद तक कृषि के साथ भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, इंडस्ट्री के साथ भी, माइक्रो एंड एमएसएमई इंडस्ट्री के साथ भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर हमारे प्रोडक्ट्स को मिल पाता है एक पोर्टल के थ्रू जो भारत सरकार ने डेवलप किया है, और एक मार्केट प्लेस मिल पाती है जो वह पहले आपको अलग अलग मार्केट्स में जा जाके अलग अलग देशों में जा जाके क्रिएट करना पड़ता था। अब एक इंटीग्रेटेड जो अप्रोच मिल रही है, और पहले भारत सरकार ने इसको अपनी सरकारी कंपनियों पे टेस्ट किया, अब उसको फिर बाद में और जो क्षेत्र हैं जैसे एग्रीकल्चर कहा मैंने और सेक्टर्स को कहा, एमएसएमईज को भी अब ओपन किया गया है इसमें, तो इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स भी अब इसमें आ रहे हैं और इस तरीके से जो ये बढ़ाया जा रहा है। और इसमें इवन लोकली जो कहीं जैसे मैं एजुकेशन में कहूँ तो यूनिवर्सिटीज़ को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है कि उनको जो परचेजेस करनी है वो भी इसे कर सकें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा ग्रोथ में। Right, and moving on to crude now. Crude oil prices slipped today, weighed down by Moody's downgrade of US sovereign credit rating and slowing down in China's industrial output and retail sales. Brent crude was trading 0.54% down at $65.06 per barrel. WTI crude was also down 0.40% at $62.24 per barrel when reports last came in. जी, और सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 1.23% बढ़कर 94,020 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, और वहीं चांदी 0.74% बढ़कर 96,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 93,371 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, और जुलाई में आपूर्ति की चांदी का वायदा मूल्य 95,630 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। अमन, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुमूल्य जवाब देने और समाचारों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। Thank you so very much, Aman. And before we close, a reminder of the headlines once again. Domestic indices end in the red in range-bound trade. Sensex sheds 271 points while Nifty settles below 25,000. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says India aims to become the food basket of the world. And Supreme Court dismisses petitions of Vodafone Idea and Bharti Airtel seeking waiver of AGR dues. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, goodbye. Market Mantra.